নমস্কার ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহোদয়গণ। আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চলেছি ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির। তো ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরের একটু ইতিহাস হালকা একটুভাবে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, পরে বিস্তারিত সম্পূর্ণ ভিডিওতেই দেখতে পারবেন। তো ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির হচ্ছে মাতা পার্বতী আর শিবজির বিবাহ স্থল। তো মাতা পার্বতী আর শিবজির বিবাহ স্থল হওয়া সত্ত্বেও এই মন্দিরের কোনো কিছুতে কিন্তু মাতা পার্বতী আর শিবজির নামের চিহ্ন মাত্র নেই, রয়েছে ত্রিযুগী নারায়ণ। কেন? কারণ মাতা পার্বতী আর শিবজির যে বিয়ে হয়েছিল সেটার তে সাক্ষী দিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বিষ্ণুজি মাতা পার্বতীর কন্যাদান করেছিল। তো সেখানে মাতা পার্বতী আর শিবজির যে বিয়েটা হয়েছিল সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ড বিষ্ণুজি জ্বালিয়েছিল, এবং যেটা 3 যুগ ধরে জ্বলে আসছে। এটা এখনও কিন্তু সজীবভাবেই জ্বলে আসছে। এই 3 যুগ ধরে জ্বলার কারণে এই মন্দিরটার নাম পড়েছে ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির। তো এই যে সোনপ্রয়াগ, এখান থেকে আমরা যাব ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির। তো গাইজ, 2023-এ দাঁড়িয়ে কিভাবে তোমরা ত্রিযুগী নারায়ণে যাবা, কতদিন থাকবা, কি কি আছে দেখার, কি জন্য এটা বিখ্যাত, সব কিছু নিয়ে এসছি তোমাদের জন্য। তো কিসে করে গেলে ভালো হয়, কিসে করে গেলে ভালো না হয়, সব কিছুই থাকবে। সঙ্গে থাকো। আর আমি শুরু করতে চলেছি ত্রিযুগী নারায়ণ। এগুলো সব কিছু একসাথে বের করার আমার কথা ছিল, কিন্তু একটু সমস্যার কারণে এগুলো আলাদা আলাদা করেই বার করতে হচ্ছে। সো ওয়েলকাম গাইজ। তো গাইজ, এইটা হচ্ছে তোমার বোর্ড। এখান দিয়ে গেলে ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির, যেটা এখান থেকে 13 কিলোমিটার দূর। আর এখান থেকে গেলে তোমরা সোনপ্রয়াগে যাবা। সোনপ্রয়াগ মানে যেখান থেকে কেদারনাথের স্ট্যান্ড, এখানে মাল্টি লেভেল পার্কিং রয়েছে, গাড়ি রাখার কোনো সমস্যাও হবে না। তো ত্রিযুগী নারায়ণ এখানে যেতে গেলে তোমরা শেয়ারিং ট্যাক্সি নেবা অবশ্যই, কারণ 13 কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যাওয়া সম্ভব আছে, কিন্তু শেয়ারিং ট্যাক্সি করে যাওয়াটাই বেটার, কারণ যেতে লাগে 1 ঘন্টা, আমাদের লেগেছে 1 ঘন্টা। যেতে যেতে এই যে একদম ন্যাচারাল ভ্যালি, হিল ভ্যালি, তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট ঘর যাওয়ার পর চলে আসবা ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির। এখান থেকে এই যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু পাহাড়ের কোলে খুব একটা সুন্দর ভিউ। ক্যামেরায় কতটা ধরা পড়ছে জানি না, কিন্তু আমার তো এখান থেকে অনেকটা ভালো লাগছে। তো দীর্ঘ 1 ঘন্টা চলার পর আমরা চলে আসলাম ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির, যেটা মাতা পার্বতী আর শিবজির বিয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। তো এখান থেকে বোর্ডটা সবসময় ফলো করবা। ত্রিযুগী নারায়ণ 50 মিটার, গৌরী গুফা, তোসি, ভিউ পয়েন্ট, সমস্ত কিছু এই লাইনেই পড়বে। তোমাদের শুধু ট্র্যাকিং করে যেতে হবে। এখানে জিএমপিএনও দেওয়া, এটা হচ্ছে বলতে পারো এটা ত্রিযুগী নারায়ণের কার পার্কিং স্ট্যান্ড। তো এইখানে তোমরা প্রাইভেট গাড়ি আনলেও পার্ক করতে পারবা, আর যাদের সাথে আসবা সেখান থেকেও তোমরা হয়ে যাবে। 50 থেকে 100 টাকা জাস্ট এইটুকুই ভাড়া নেবে তোমাদের এই 13 কিলোমিটার পথ চলার জন্য। পাহাড়ের রাস্তায় 13 কিলোমিটার মানে বুঝতেই পারছো 1 ঘন্টা আমাদের নর্মালি লেগে যাবে। তো সেই কারণে 100 টাকাটা নগণ্য করে অবশ্যই চলে আসা ভালো ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির। এটা ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরের তোমার রুট ম্যাপ। আমি তো সত্যি, আমার একটা জিনিস শকিং লেগেছে যে গঙ্গোত্রীর থেকে ভৈরব ঘাট হয়ে হার্সিল হয়ে এই রুট ম্যাপ ফলো করে চুয়ারকার, পাদলি, মঙ্গু, এইখান থেকে ত্রিযুগী নারায়ণ, নারায়ণ থেকে সোনপ্রয়াগ, সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ, অর্থাৎ টোটাল জার্নি এইখান থেকেই নাকি করা যায়। মানে টোটাল এটা একটা পুরো গোটা আমাদের উত্তরাখণ্ডে যে 4 ধাম যাত্রা, সেটার পুরো সম্পূর্ণ বস, এটা বিশাল জায়গা। তো তোমরা নিজেরাই শুনে নাও। जय बोलो भगवान त्रिविघ्न नारायण की जय। ये स्थान शिव पार्वती का विवाह के स्थान से जाना जाता है। त्रिविघ्न नारायण बोले तो भगवान नारायण का तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान त्रिविघ्न नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। पुराणों के अनुसार जब एक बार राजा बलि हुए थे, दैत्य राजा बलि, उन्होंने सारे विश्व को जीत लिया था, मृत्यु लोक को जीत लिया था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया था। उसमें से उन्होंने कई महायज्ञ पूरे करने थे। एक यज्ञ 99 यज्ञ पूरे कर दिए थे, एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो फिर सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। ये स्थान पहले माता अदिति का
आश्रम हुआ करता था जो देवताओं की माता हुआ करती थी। फिर त्रेता के यहाँ पे माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था, मृत्यु लोक को, स्वर्ग लोक को और राजा बलि को पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम त्रियुगी नारायण। তো এখন আমরা त्रिजुगी नारायण मंदिरे चले एसेছি और सामने আপনারা देखते पाচ্ছেন যে भगवान विष्णु को समर्पित ये भव्य मंदिर त्रिजुगी नारायण गांव में स्थित इसका प्राचीन रास्ता गुट्टूर से श्री केदारनाथ को जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर से उसी गांव की स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है और ये गांव एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। उत्तराखंड टूरिज्म এটা লিখেছে, তো নিশ্চয়ই তার মানে একটা বিশাল বড় ব্যাপার এটা। আমরা এখন রয়েছি ৭,৫০০ ফুট উচ্চতায়। কেদারনাথ কিন্তু আরও উপরে ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতায়। এখান থেকে এই যে জিএমভিএন এর তোমার রুট ম্যাপ দেওয়া রয়েছে, ১৫০ মিটার, ২০০ মিটার, ১০০ মিটার, ভিউ পয়েন্ট, গৌরী কেভ, কালী কামালি ধর্মশালা, त्रिजुगी नारायण मंदिर समस्त किछु एखान থেকেই রয়েছে। তোমার त्रिजुगी नारायण मंदिरे ना बंधुरा তোমরা টোটাল 4টে কুণ্ড দেখতে পাবা, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড। তো এর মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস কিন্তু বিষ্ণুকুণ্ড আর ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ড হচ্ছে যে সমস্ত যাত্রীরা আসে তারা ওতে স্নান ফান করে। বিষ্ণুকুণ্ড এইখানে, এখান থেকে হচ্ছে যারা ওই পিতৃদের ইয়ে দেয় না, ওই পিণ্ড দেয়, সেখানে এখান থেকেও দেওয়া যায়। এখান থেকেও শুধুমাত্র পেট সেলাই হয় না, এটা এখানেও হয়। সরস্বতী राजा हिमालय ने यहाँ पे ये मंदिर बनाया, यहाँ पे उनको स्थापित किया, अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी जो दक्षायनी सती के नाम से हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को किसी मन मिटाव के कारण नहीं बुलाया और सती बिना बुलाई गई अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो फिर दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। यह स्थान पार्वती माता जी का भी जन्म स्थान है। यहाँ पे माता मैना की कोख से उन्होंने जन्म लिया, यहीं पे उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। गौरी गुफा नाम से ऐसी कंदराएं बनी हुई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सरोवर हैं, उन्हीं के किनारे बैठ के माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने की तपस्या किया। फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। जैसे घर में अपनी बेटी का विवाह अपने कुल देवता को साक्षी मान के उनके सामने करते, तो ऐसे ही राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह नारायण को साक्षी करके किया था। तो ये स्थान भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन शंकर पार्वती माता जी का विवाह होने के कारण ये स्थान काफ़ी प्रचलित है। मंदिर के अंदर में मुख्यतः 7 कुंड हैं, लेकिन प्रांगण में 5 कुंड प्रत्यक्ष यात्रियों के दर्शन के लिए हैं। 2 कुंड गर्भगृह में, वहाँ पे पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। मंदिर के अंदर जो पहला कुंड पड़ता है ब्रह्म कुंड, उसमें यात्री लोगों के स्नान होते हैं। रुद्र कुंड में भी स्नान होते हैं। तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड तो स्नान करने के लिए कुंड है वो। विष्णु कुंड में आचमन होता है। विष्णु और सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण, पितरों को जलदान दिया जाता है और देवताओं की जो डोली इत्यादि आती, देवता की जो मूर्तियाँ वगैरह आती हैं ना, तो उनके भी स्नान होते हैं। फिर वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है विष्णु कुंड के बगल में, उसका नाम है नारद कुंड। वहाँ पे कोई जैसे बद्रीनाथ या इत्यादि नहीं जा सकता। तो ऐसा महत्व है यहाँ पे भी, पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। ऐसी माने पहले पुराने जमाने से लोग आके जो दूरस्थ नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे आके पिंडदान भी करते हैं। फिर अंदर में सूरज कुंड है। तो सूर्य कुंड का जल जो है भगवान के भोग के लिए ही हमेशा प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ पे यात्री लोग या आम जनता नहीं जा सकती है। फिर अंदर गर्भगृह, जहाँ से ये पानी का उद्गम है, मंदिर को जो मुख्य मूर्ति है उसी के चरणों में एक छोटा सा कुंड, उसका नाम है अमृत कुंड, जहाँ से पानी आता है। वहाँ का जल भगवान के स्नान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर वहाँ पे धर्मशिला है, बताते हैं उसी स्थान पे राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मोती 1.25 लक्ष गायों का दान करके पार्वती माता जी का कन्यादान किया था, उनका पूजन किया था। तो यात्री लोग भी आज आके वहाँ पे पूजन करते हैं। उस वक्त रत्नों का दान किया, सोना चांदी मोर मोती। ये कलयुग में चावलों को जो है मोती माना जाता है, तो रत्न दान में भी आता है, अन्न दान में भी आता है।
किसी को पता होता तो माता जी को ऊटी इत्यादि चढ़ाते हैं, धोती साड़ी कपड़ा लता इत्यादि फल फ्रूट चढ़ा के माता जी का पूजन करने के बाद फिर अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान त्रिविघ्न की मूर्ति है। दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी, वाम भाग में सरस्वती, पीछे क्षेत्रपाल, कुबेर, मचिन्नाथ जी, बद्रनारायण और रामचंद्र जी। और भगवान की पंचायत है, 108 शालिग्राम है, सत्यनारायण की मूर्ति है, भगवान विष्णु की चतुर्भुज विग्रह मूर्ति है, शिव पार्वती का युगल मूर्ति है। उनके दर्शन करने के बाद वहाँ पे 3 युग की धुनी है। जो वो अग्नि ज्योति है वो प्राचीन अग्नि है। बताते हैं उस वक्त राजा लोगों ने, ऋषि मुनि लोगों ने उसको मंत्रों से उसको प्रज्वलित किया था, कुछ काल तक तो वो जलती रही। बाद में उसमें समिधा डाल के उसको जो है ना जीवित रखा गया। पौराणिक अग्नि है। रात दिन 24 घंटे, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य तीर्थों में, हिमालय के तीर्थों में पटबंध हो जाते हैं, तो यहाँ पे पटबंध नहीं होते हैं। यहाँ पे त्रिकालिक पूजा चलती है। सुबह में भगवान का जागरण होता है, दोपहर में भगवान का भोग लगता है, शाम को आरती होती है। ये नित्य का काम है। फिर दर्शन करने के बाद वहाँ लकड़ी चढ़ाने का माध्यम है, हवन करने का माध्यम है। बाहर प्रांगण में पंचनाम देवता हैं। द्वारे पे गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। ये छोटी छोटी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के अंदर में है। सबके दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। तो बोलो भगवान त्रिनारायण की जय, शंकर पार्वती मैया की जय। पंडित जी, जैसे अभी यहाँ से कोई रास्ता केदारनाथ धाम के लिए भी जाता है इधर साइड से आसपास से? जी, यहाँ से रास्ता जो पौराणिक हिमालय का बीहड़ रास्ता है तो काफी दुर्गम है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ये चट्टानों में उतरना पड़ता है। जो कि जो आम जो रास्ता है यहाँ से वापस, जो मेन रास्ता है यहाँ से गौरीकुंड से जंगल चोटी रामबाड़ा होके जो रास्ता जाता है वो सुगम होता है, सुगम पड़ता है। यहाँ भी रास्ता है सीधे, लेकिन एक वो जो है एक बार घाटी में उतरना पड़ता है। आगे जो है कि सोन नदी है, उसको पार करना पड़ता है। फिर आगे जो बड़ी बड़ी चट्टानें उन पर चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके काफ़ी बीहड़ रास्ता है। वो रास्ता जो है ना ट्रैकिंग वालों के लिए, वैसे आते जाते तो बहुत कम है, क्योंकि पानी की दिक्कत है। ऊपर में जंगली रास्ता है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे, कस्तूरा मृग विहार का ये रिजर्व फॉरेस्ट भी है, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाहे तो यहाँ से सुगम रास्ता बन सकता है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इसको संज्ञान में लाए, तो यहाँ से केदारनाथ की बिल्कुल यात्रा बिल्कुल नज़दीक हो जाएगी। पास ही में यहाँ से मंदिर के पीछे का जो सुमेरु पर्वत है वो बिल्कुल सामने दिखता है। हाथ जैसे हाथ पहुँच सकता है वहाँ से, ऐसी घाटी। बासुकी ताल है वैसे यहाँ पे, जो मंदिर के केदारनाथ के पास में बासुकी ताल। तो यहाँ से बासुकी ताल से जो धारा आती वो यहीं पे सोन नदी में, यहाँ पे उनका संगम भी है। त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए जैसे हम आ रहे थे तो हमने बोर्ड लगा देखा कि यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए भी। हाँ जी, यहाँ से गंगोत्री और केदारनाथ के बीच का जो है ये पड़ाव है। यहाँ से गंगोत्री, आज भी लोग गंगोत्री से गंगा जल लेके आते हैं जो, तो केदारनाथ इसी रास्ते से जाते हैं। जो ये कावड़े लोग हैं या महात्मा लोग हैं या चारों धामों की जो भी गृहस्थ अगर वानप्रस्थ में यात्रा करता है ना, तो वो लोग यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर इसी रास्ते से जंगल होके फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे करके एक पुराना